Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you again in your maths class. We are studying chapter 12 exponents and powers from class 8 maths. In our previous video, we discussed how to express a number in its standard form. Let us recall that a number can be written in its standard form as m into 10 raised to power n, where this part m is a decimal number lying between 1 and 10, or it may also be equal to 1, and then we have this part multiplied by 10 raised to power n. This n is an integer. It is a positive integer in case of very large numbers, and it is a negative integer in case of very small numbers, and yes, the base is every time 10. So this is the way to write a number in its standard form. And remember, in case of very large numbers, the exponent is positive. In case of very small numbers, the exponent is negative. Now today we are going to do exercise 12.2. I hope you have tried the questions once and also you have done them rightly, and today you are going to verify your answers from here. We take up the first question from exercise 12.2. Express the following numbers in the standard form. We have this number. First of all, look at the number and judge whether it is a very small number or a very large number. Here you can see it is starting from the decimal and it is less than 1. Yes, it is a very small number, and so the exponent will be negative. Now first look at the position of the decimal. It is located here, and to write the number in the standard form, we want the position of the decimal to be between 8 and 5. And then we will have this part as 8.5 into 10 raised to power something. So this will be less than 10, a decimal number, it will be okay. Now what should be the exponent? For this we need to count the number of digits that the decimal will be jumping. जब decimal यहाँ से यहाँ jump करेगा तो कितनी digits को cross करते हुए jump कर रहा है, वो digits हमें count करनी है, और जो भी counting आएगी उसे हम यहाँ exponent में लिखेंगे. We count the number of digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the decimal will be jumping 12 digits, and so the exponent will be 12. Is it right? No. Here the number is very small, and so the exponent will be minus 12, and so the standard form of this number is 8.5 into 10 raised to power minus 12. Okay, we take here next one. Again, this is a very small number. The present position of the decimal is here, and we want it to be between 9 and 4. In this way, we will be able to write 9.42 into 10 raised to power something. Now again count the number of digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 digits की jump लेगा decimal यहाँ पर, और ऐसे में फिर से exponent क्या होगा? It will be minus 12 because again the number is very small. I hope it's clear. Next we take this one. Now this is a very large number, and so the exponent will be positive. Now look at the position of the decimal. Are you able to see the decimal here? Not at present, but you can always think that the decimal will be located after the ones place digit. This is the ones place digit, और इसके बाद ही position होती है decimal की. तो अभी आप decimal की position यहाँ last में assume कर सकते हैं, और हमें इसे standard form में लिखना है. ऐसे में decimal की position होनी चाहिए यहाँ between 6 and 0, and then we will be writing the standard form as 6.02 into 10 raised to power something. अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 2 के बाद के जो zeros हैं वो हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एंड में जो ज़ीरोज़ हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई ज़ीरो आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते इवन आफ्टर द डेसिमल. अगर दो डिजिट्स के बीच में जो दो डिजिट्स न्यूमेरिकली ज़ीरो नहीं हैं उनके बीच में ज़ीरो आ रहा है तो उसे ज़रूर लिखना है. हाँ, डेसिमल के बाद एंड में अगर ज़ीरोज़ हैं तो हम उन्हें स्किप कर सकते हैं. So here this part will be 6.02, and now count the number of digits that the decimal is jumping. From here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 digits का jump लेगा यहाँ decimal, and so the exponent will be 15. And since this is a very large number, it will be plus 15 or simply 15. So the standard form of this number is 6.02 into 10 raised to power 15. Okay. Next we have this number. This is again a very small number. So we write here 8.37 into 10 raised to power. What we should see here? अभी decimal की position यहाँ है और हम चाहते हैं यहाँ आ जाए position, और ऐसे में हमें digits count करने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 डिजिट्स का जंप लेना होगा डेसिमल को, और ऐसे में यहाँ पर एक्सपोनेंट हो जाएगा -9, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है, एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव. ओके, एवरी टाइम वी नीड टू सी द पोजिशन ऑफ द डेसिमल एट प्रेजेंट एंड द पोजिशन ऑफ द डेसिमल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर उनके बीच में जितनी जंपिंग हो रही है वो जंपिंग डिजिट्स आपके यहाँ एक्सपोनेंट में आ जाएंगी. द नंबर ऑफ digits that the decimal is jumping, that counting will come in the exponent. A positive one in case of very large numbers, negative in case of very small numbers. Next we take here this number. This is again a very large number. Here you can see that the position of the decimal should be here, and to write in the standard form we wanted to bring it here. So we write 3.186, और ये zeros इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, into 10 raised to power. Now count the number of digits. The decimal is jumping. यहाँ से यहाँ आने में कितनी जंप हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So here 10 raised to power 10. This is the standard form of this number. Since this is a large number, the exponent is positive. Next we take question 2. Express the following numbers in usual form. अब यहाँ पर usual form लिखना है हमें, जबकि standard form दिया गया है, और हम पहले इसे डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे और फिर हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये आंसर आ रहा है. द फर्स्ट वन, इट इज़ 3.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ये समझ में आता है कि जो नंबर होगा यूजुअल नंबर वो लेस देन 1 होगा, वेरी स्मॉल नंबर होगा. दूसरी बात, जो ये एक्सपोनेंट है ये नंबर ऑफ जंप्स को इंडिकेट करता है कि डेसिमल कितनी जंप्स लेगा. यहाँ पर 6 है वैल्यू, तो 6 जंप्स लेगा डेसिमल. अब क्योंकि बहुत ही छोटा नंबर बनाना है तो ऐसे में जो डेसिमल की जंपिंग होगी वो होगी लेफ़्ट साइड की तरफ. तो आप देखिए 3.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, दिस शुड बी हियर 2 and 0, इट्स ओके. अभी डेसिमल कहाँ है? 3 और 0 के बीच में. अब यहाँ से 6 जंप्स लेनी चाहिए लेफ़्ट की तरफ, जिससे हमें नंबर मिल जाए इन द यूजुअल फॉर्म. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6, ये 6 जंप्स हो गई, और अब आपका डेसिमल यहाँ आना चाहिए 0.0000302. दिस शुड बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर. और आप यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं डेसिमल से पहले. लेट मी मेक सम स्पेस. यू कैन राइट इट एज 0.0000302. दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म. कैसे लिखा हमने डायरेक्टली? हमने देखा नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो ये बहुत ही छोटा नंबर होगा, और ये 6 जो है इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ जंप्स जो डेसिमल को लेनी है. और ऐसे में जब यहाँ से जंपिंग स्टार्ट करेंगे, छोटा नंबर है तो लेफ़्ट साइड में ज़ीरोज़ आने चाहिए. तो हमने यहाँ से 6 जंप्स दी, इस पोजीशन से इस न्यू पोजीशन तक 6 जंप्स दी और हमें नंबर मिल गया. इसी को अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें, क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं. लेट अस सी दैट वे ऑल्सो. We have the number 3.02 into 10 raised to power -6. This can be written as 3.02 upon 10 raised to power 6. ऐसा कैसे लिख सकते हैं? Because we know that a raised to power -m, this is equal to 1 upon a raised to power m. क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के. So every time we can take one in the numerator and the other in the denominator. In this way we can take this expression, and so here we have taken 10 raised to power -6 to the denominator. Now here we have 6 zeros at the bottom. Denominator में 6 zeros हैं. 1 2 3 4 5 6. अब इन 6 zeros को कैंसिल करके यहाँ से इस डेसिमल की प्रेजेंट पोजीशन से आपको 6 जंप्स दिलवानी है. बात समझ में आ रही है? वही काम जो अभी हमने पहले किया था डायरेक्टली, उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख रहे हैं. सो हियर वी नीड टू टेक 6 जंप्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू द लेफ्ट. फॉर दिस वी राइट 0 2 हियर, देन 1 जंप, 2 3 4 5 6, एंड देन द डेसिमल. हियर वी कैन राइट 0, एंड सो दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म. सेम है देखिए. तो इस तरह से आप इलेबोरेट करके स्टेप्स लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी आपको लिखना आना चाहिए. नेक्स्ट वी टेक हियर 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. अब क्योंकि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो ऐसे केस में लार्ज नंबर बनेगा, और लार्ज नंबर के केस में जो ज़ीरोज़ लगेंगे वो राइट साइड में जाएंगे. और क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमेरिकली 4 है जो एक्सपोनेंट है, दिस मीन्स दैट द डेसिमल विल बी टेकिंग 4 जंप्स. तो अभी ये डिजिट तो हमने लिख लिया 4 यहाँ पर, और यहाँ से डेसिमल की जो पहली पोजीशन है यहाँ से हम 4 जंप्स लेंगे टूवर्ड्स द राइट. सो
1 2 3 4. दिस शुड बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ द नंबर. ये इस नंबर का यूजुअल फॉर्म है. वी कैन राइट हियर 4.5 into 10 raised to power 4. This is equal to this. You can also elaborate the steps and show it how we are getting this. 4.5 into 10 raised to power 4. 4.5 into 1 2 3 4. इस तरह से 10 raised to power 4 को हमने यहाँ पर ओपन अप कर दिया और इसी को हम लिख सकते हैं 45/10. डेसिमल रिमूव करके नीचे 0 आ गया तो 45/10 into here we have 10,000. अब ये एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 45,000. देखिए वही यूजुअल फॉर्म आ गया. इसी को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं. लेट अस ट्राई इन दैट वे ऑल्सो. किस तरह से एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, दिस वी आर गोइंग टू सी. नाउ हियर सपोज we take here 4.5 into 1 2 3 4. Now suppose that the decimal is not there. सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं तो 45 को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिलेगा. अब आप डेसिमल ले आइए तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा और यहाँ हो गया डेसिमल के बाद 0 जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. दिस विल बी इक्वल टू 45,000. So in this way also you can think of the question. In this way we get the usual form of this number. You can try any method but yes every time you should know how to write the number directly. ये बहुत ज़रूरी है. Next we take here this number 3 into 10 raised to power minus 8. अब यहाँ पर आप डेसिमल की प्रेजेंट लोकेशन क्या समझते हैं? 3 के बाद होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी नंबर की वंस प्लेस डिजिट के बाद ही तो डेसिमल की पोजीशन होती है. तो यहाँ पर 3 जो है वंस प्लेस डिजिट है, ऑब्वियसली उसके बाद डेसिमल की पोजीशन हमें समझ में आती है. अब हम यहाँ देख रहे हैं एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो ये एक स्मॉल नंबर का केस है और ऐसे में जो जंपिंग होगी डेसिमल की वो होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट. और अब अगर हम इसे डायरेक्टली लिखना चाहें तो वो क्या होना चाहिए? देखिए ये 3 तो है ही, यहाँ से यहीं से हम स्टार्ट करेंगे 8 डिजिट्स काउंट करना है. ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब आपका डेसिमल आ जाएगा. तो देखिए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 8 जंप्स ले ली डेसिमल ने. यहाँ आप 0 और लिख सकते हैं एंड सो दिस विल बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर. समझ में आ रहा है आपको? इसी को अगर आप एलैबोरेट करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 3/10 raised to power 8. अगेन वी कैन राइट a raised to power minus m इक्वल टू 1/a raised to power m. ये हमेशा लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के. सो एवरी टाइम वी कैन टेक वन इन द न्यूमरेटर द अदर इन द डिनोमिनेटर. सो विद दिस नाउ दिस विल बी 3/1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zeros behind 1 and so now to write it in the decimal form ये 8 zeros कैंसिल करके पीछे से 8 डिजिट्स काउंट करके हमें डेसिमल लगाना होगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन डेसिमल 0 पॉइंट दिस मच नंबर. ये वही है जो हमने डायरेक्टली लिख लिया था. तो हमें डायरेक्टली लिखना ज़रूर आना चाहिए और ये कैसे आ रहा है दिस ऑल्सो आई एम शोइंग टू यू. नेक्स्ट वी टेक हियर दिस वन. Again here we see that the exponent is positive so it is a large number और ये जो exponent है ये indicate करता है the number of jumps that the decimal will be taking and this time towards the right side. क्योंकि बड़ा नंबर बनाना है तो right side में हमें 9 jumps लेनी होंगी. चलिए डायरेक्टली लिखने की कोशिश कीजिए. पॉज करिए वीडियो को और एक बार खुद लिखिए. चलिए चेक करते हैं क्योंकि हमें 9 जंप्स लेनी है. अभी पोजीशन कहाँ है डेसिमल की? यहाँ से हम 9 डिजिट्स काउंट करना शुरू करेंगे. तो ये पहला 1 तो ऐसे ही लिख लीजिए और अब हम शुरू करते हैं 9 डिजिट्स की काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये हो जाना चाहिए हमारा यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर. और ये कैसे आ रहा है एक बार इसको एलैबोरेट करके भी हम लिख लेते हैं. We have 1.0001 into 10 raised to power 9. This can be written as 1.0001 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको और आप यहाँ डेसिमल रिमूव करके नीचे 4 zeros आ जाएंगे 10001 और डेसिमल रिमूव करके नीचे हमारे पास 10,000 आ गया एंड देन हियर वी हैव 9 zeros. ठीक है, ऐसे में ये 4 zeros कैंसिल हो जाएंगे इन 4 zeros से और क्या बच गया 10001
and then here we have 5 zeros, 1 2 3 4 5, the same as we wrote directly. देखिए directly हमने लिख ही लिया था और कैसे आ रहा है ये भी हमने समझ लिया है. आपको दोनों ही मेथड्स आने चाहिए और डायरेक्टली लिखना हमेशा एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए. नेक्स्ट वी टेक हियर this one. Now again this is a very big number, as you can see the exponent is positive 12 here. अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, लार्ज नंबर है, तो हमारी जो डेसिमल है वो कितनी डिजिट्स का जंप लेगा, 12 डिजिट्स का टुवर्ड्स द राइट. यहाँ इस डायरेक्शन में 12 डिजिट्स का जंप होगा ऑफ द डेसिमल. तो अभी डेसिमल यहाँ है, ठीक है, इसको डायरेक्टली लिखने की कोशिश कीजिए एक बार. यस, अभी हमारा डेसिमल यहाँ है. अब यहाँ से हम 12 डिजिट्स की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये हो गया आपका नंबर. ठीक है, इसी को एक बार इलेबोरेट भी कर लेते हैं कि हम कैसे लिख रहे हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए. 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12. 5.8 को हम लिख सकते हैं 58/10 और फिर ये 12 ज़ीरोज़ लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पर एक से एक ज़ीरो कैंसिल. This is equal to 5 8 and then we will have 11 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and this is the usual form of this number that we had already written directly. देखिए वही तो है. In this way we have written the answer directly and this way we have shown the answer. Both ways you should know. Next we have here 3.61492 into 10 raised to power 6. Again this is a very large number and so again the decimal will take 6 jumps towards the right. और ऐसे में इसको एक बार लिखते हैं डायरेक्टली. चलिए कोशिश कीजिए. यहाँ पर अभी पोजीशन है डेसिमल की. 3 के बाद से हम 6 जंप्स लेंगे डेसिमल के लिए. वी स्टार्ट फ्रॉम 6 हियर. 6 1 4 9 2. कितनी जंप हो गई है? 1 2 3 4 5 और एक और जंप, 6 जंप्स हो गई. और ऐसे में डेसिमल यहाँ से एंड में शिफ्ट हो गया है and this is now the usual number. और आप इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे अगर आपको शो करना हो? You will write it as 3.61492 into 10 raised to power 6 equal to, अब यहाँ पर डेसिमल रिमूव करके नीचे 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. 361,492 अपॉन वी हैव 1 2 3 4 5. 1 लाख आ गया डिनोमिनेटर में. into here we have 6 zeros. अब ये 5 zeros तो कैंसिल हो गए and then we have 361,492. दिस इज़ द सेम यूजुअल फॉर्म जो हमने डायरेक्टली लिखा था, वही आंसर आ रहा है. तो ये कैसे लिखना है डायरेक्टली ये भी आना चाहिए और कैसे हमें कैलकुलेट करके शो करना है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट वी टेक हियर क्वेश्चन 3. एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब यहाँ पर जो नंबर्स विजुअलाइज हो रहे हैं इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. हियर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 माइक्रोन. This is equal to 1 upon how many zeros are there? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. This much meter. इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 10 raised to power 6 meters. और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 into 10 raised to power minus 6 meters. यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए 1 upon a raised to power m. This is equal to a raised to power minus m because these two are multiplicative inverse of each other. और ऐसे में this is the standard form of this number. I hope it's clear. Next we take here charge of an electron is this much coulomb. We have to express it in standard form. अब आप देखिए ये बहुत ही छोटा नंबर है. First we write here charge of an electron. दिस विल बी, अभी देखिए आप डेसिमल की पोजीशन यहाँ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम डेसिमल को यहाँ लेकर आना चाहते हैं 1 और 6 के बीच में. और ऐसे में ही जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर हाउ मच. अब जितनी जंप ये डेसिमल ले रहा है उतने ही हमें यहाँ पर एक्सपोनेंट में इंडिकेट करना होगा नंबर. वो काउंटिंग जो डेसिमल की जंप्स को डिनोट कर रही है वो काउंटिंग हमारे यहाँ एक्सपोनेंट में आएगी. सो हियर वी सी हाउ मेनी जंप्स वी आर टेकिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. So 19 jumps this decimal is taking. और ऐसे में आपका एक्सपोनेंट होना चाहिए 19
और क्योंकि ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये होना चाहिए -19, and so charge of an electron is 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. Okay, clear? Next we have here this one, size of a bacteria. Try to write it if you have not done it till now. Yes, अभी डेसिमल है यहाँ और हम चाहते हैं डेसिमल यहाँ आ जाए, तो ऐसे में 5 into 10 raised to power how much, कितनी जम्प्स लेनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 जम्प्स दिलवानी है हमें डेसिमल को, और क्योंकि ये छोटा नंबर है इट विल बी -7 and meters. So this is the size of a bacteria, so small, 5 into 10 raised to power -7 meters. Next we have size of a plant cell. आप यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट से समझ सकते हैं कि कितना छोटा साइज है. साइज ऑफ अ प्लांट सेल हियर दिस विल बी, अभी डेसिमल यहाँ लोकेटेड है और हम चाहते हैं 1 और 2 के बीच में आ जाए टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट पार्ट 1.275 इंटू 10 रेज़ टू पावर हाउ मच, कितनी जंप ले रहा है डेसिमल, 1 2 3 4 5 जंप्स हो रही हैं, एंड सिंस इट इज़ अ स्मॉलर नंबर सो -5 एंड राइट द यूनिट ऑल्सो. So this is the size of a plant cell, a very small one. Next we have thickness of a thick paper. So thickness of paper here, write it in standard form. This is 0.07 millimeter. Now here you can see अभी डेसिमल यहाँ है और हम चाहते हैं यहाँ आ जाए पोजीशन उसकी. So 7 into 10 raised to power -2 millimeter. और आप इस तरह से भी समझ सकते हैं 0.07, इट इज़ 7/100, 7/10 raised to power 2, this will be 7 into 10 raised to power -2. In this way also you can understand the concept, and we have written it directly 7 into 10 raised to power -2 millimeter. Okay, next we take here question 4. In a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness this much millimeter. What is the total thickness of the stack? एक स्टैक है जिसमें 5 बुक्स हैं और एक बुक की जो थिकनेस है वो है 20 मिलीमीटर्स, और फिर उसी पर 5 शीट्स ऑफ पेपर हैं और एक शीट ऑफ पेपर की थिकनेस इतनी दी गई है 0.016 मिलीमीटर. और ऐसे में जहाँ 5 बुक्स हैं और 5 शीट्स हैं तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी स्टैक की, दिस इज़ द क्वेश्चन. तो पहले यहाँ हम सॉल्यूशन में लिखते हैं thickness of one book, thickness of one book, this is given as 20 mm. Then thickness of one paper sheet, this is given as 0.016 millimeter. Now thickness of the stack, let me take a next page. Thickness of the stack, this will be equal to thickness of 5 books plus thickness of 5 sheets ऑफ पेपर. ये 5 क्वांटिटी हमें इनकी लेनी है. नाउ 5 इंटू ये कितनी हो जाएगी थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, एक बुक की थिकनेस है 20 mm, तो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो गई 5 इंटू 20 mm. सिमिलरली हियर एक शीट ऑफ पेपर की थिकनेस है 0.016 मिलीमीटर, और ऐसे में 5 शीट्स की कितनी हो गई इंटू 5 हो जाएगा. नाउ मल्टीप्लाई, this will be 5 into 20 100 plus here we will have 0.080 mm. Now add up the two numbers, this will be 100.080 and this is in millimeter. Now this is not in the standard form, we want to convert it into standard form. How to do this? अभी आप देखिए ये पार्ट 100 है, तो क्योंकि ये 10 से छोटा नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और फिर यहाँ पर 10 का कोई मल्टीपल भी नहीं दिख रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो डेसिमल की पोजीशन है वो यहाँ है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए,
और ऐसे में इट विल बी 1.0008. ठीक है, ये लास्ट ज़ीरो को हम स्किप कर सकते हैं आफ्टर द डेसिमल, हम इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बीच वाले ज़ीरोज़ को हम स्किप नहीं कर सकते. तो यहाँ हम 1.0008 लिख लेंगे इनटू 10 रेज़ टू पावर हाउ मच. कितनी जंप ले रहा है डेसिमल? इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने में 2 डिजिट्स की जंप हो रही है, और क्योंकि ये एक लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा. सो इट विल बी 10 रेज़ टू पावर 2 mm. एंड सो दिस इज द थिकनेस of the stack. I hope it's clear. Let me erase this. This was just to indicate on main points, and so this is the thickness of the stack. I hope this is clear. With this we complete this question, this exercise, and also this chapter. Again, practice these questions, try to make your own questions and share them with your friends. Try to test each other. Okay then, bye for now.